Hi everybody, good afternoon. This is Vishwajit Datta and I'm with AceCat and AceCat is an institution जो CAT के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कराती है. आपने देखा होगा अक्सर हम कई बार ये बात करते हैं कि हमारे पास 5 महीने 5.5 महीने कई बार 6 महीने कई बार 7 महीने हमारे पास जो जितना भी टाइम होता है उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं. और स्ट्रैटेजी के प्लानिंग से मेरा मतलब है दैट यू नीड टू नो द सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम. You need to know the various topics that are supposed to come in the exams, and then you need to allocate time accordingly so that you can prepare for this exam. CAT 2024, 3 sections you are supposed to cover, and each section you are supposed to cover in 40 minutes of time. Depending upon the number of questions, the time allocation is to be given. On the basis of last year's exam, as you know that 22 questions in quantitative ability, 24 in VRC and 20 questions in DILR, and that you have to summarize each section in fact in 40 minutes of time. हम अक्सर बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में इतने टॉपिक्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इतने सारे टॉपिक्स हैं, वर्बल एबिलिटी में इतने सारे टॉपिक्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग और DILR में इतने सारे टॉपिक्स हैं. बट कई बार हमको ये लगता है कि we are not supposed to teach on the media, reason being that will not make people join your syllabus, join your program and so on. But I believe that to give you the right picture as to what is supposed to come in the paper and with what level of preparation you are able to clear this exam, I believe that certain sort of information with respect to what exactly going to come in the paper and how somebody could focus on that microscopically. I believe that we need to touch the paper of the past years, CAT 2023, 22, 21 and so on. अक्सर हम ये बात करते हैं कि वो बच्चे जो टॉपिक वाइज तैयार करते हैं, टॉपिक वाइज तैयार करने का मेरा मतलब ये है that the whole syllabus, let us assume that we are talking on quantitative ability. Quantitative ability is divided into, in fact, 4 parts, I would say. One is your arithmetic, which most of the people are going to cover. Second is your algebra, which I believe that the students of science and engineering background, they are definitely going to cover. And sometimes students of other background should also cover. Third part is your geometry. Geometry, sometimes you believe that geometry we have studied in our 9th and 10th. But the kind of questions that you're going to see there in the paper sometimes would require a lot of logic into it. And the logic sometimes doesn't come being in the paper under that pressure and so on. We leave. But I believe that some part of geometry can be done. And third is your modern mathematics, which is comprising of permutation and combination and probability, which hardly have only 1 or 2 questions in the paper. क्योंकि कई सालों से ऐसा इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस नहीं आए हैं. तो पूरा का पूरा जो प्रेपरेशन है उसको आप 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो. इन 4 हिस्सों के अंदर एक चैप्टर आता है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम को आप अलजेब्रा के अंदर भी ले सकते हो, ओके, बट आप चाहो तो इसको आप अरिथमेटिक के अंदर भी लिख सकते हो. बिकॉज जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th स्टैंडर्ड, इनफैक्ट 5th क्यों 4th स्टैंडर्ड में बोल सकता हूँ, यू स्टार्टेड वर्किंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स. तो 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड्स, इन सारे चैप्टर्स में आपको नंबर से रिलेटेड हम बात करते हैं. इनफैक्ट नंबर के प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करते हैं. दिस ईयर आई हैव सीन समबडी गेटिंग इनटू IIM Ahmedabad with 9 marks in quantitative ability. Just 9 marks. So I believe that somebody with 9 marks having good academic structure, good in 11, good in 10th and 12th, good in graduation as well, be able to get a call from IIM Ahmedabad. Forget about IIM Ahmedabad, I'm talking about IIM. Getting into an IIM is a prestigious matter, and somebody with 9 to 10 marks with good academic records of 9th and 10th and 12th standard be able to go to IIM. 10 नंबर क्वांटिटेटिव एबिलिटी में लाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. समटाइम्स यू कैन हैव ए सेलेक्टिव प्रेपरेशंस. व्हेन यू मेक ए वेरी सेलेक्टिव प्रेपरेशन मीन्स यू हैव टेकन ए पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू हैव प्रिपेयर्ड दैट पर्टिकुलर टॉपिक सो एग्जॉस्टिवली, इतना ज़्यादा आपने उसको डीपली प्रिपेयर किया कि अब आपको उस टॉपिक में से कोई भी सवाल आ जाए पेपर में आप बना सकते हो.
सवाल आप क्या बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, ये एक अजम्पशन है। इसलिए अजम्पशन है क्योंकि उस दिन आपके साथ क्या होने वाला है, नोबडी नोज। मैं एक टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊं और उस टॉपिक पे सवाल भी आ जाए, बट सवाल के अंदर के कॉन्सेप्ट को मैं रीजनिंग के तौर पर नहीं ढूंढ पाऊं या नहीं समझ पाऊं, तो मैं वो सवाल कर नहीं सकता हूं। दैट विल रेंडर मी नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इफ आई डू नॉट गेट दैट लॉजिक इन माई माइंड, है ना। कई बार हमको ऐसे लगता है कि मैं टॉपिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्टेड टॉपिक्स को मैं वहाँ जाके अप्लाई करूँगा, बिकॉज इन 40 मिनट्स ऑफ टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अब मैं टॉपिक कैसे सेलेक्ट करूँ, हाउ डू आई सेलेक्ट अ टॉपिक? सिलेक्शन ऑफ टॉपिक किसके ऊपर बेस्ड होगा? इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू सी इन द पेपर। नाउ हर साल आप देखोगे 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री से आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से आएंगे, राइट। मतलब यदि 6-7 क्वेश्चन अलजेब्रा से आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री में से आएंगे, 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से आएंगे, तो मेजर पार्ट आपके अरिथमेटिक से आएंगे। आपको ये जानने के बाद भी आप कई बार टॉपिक को सिलेक्ट नहीं कर पाते, उसके बाद भी आपके नंबर नहीं आ पाते। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू नो दैट दीज आर द टॉपिक्स दैट आर बाउंड टू कम इन द पेपर, स्टिल आप उसको उतने गहराई से जांच नहीं पाते हो कि जो सवाल आ रहे हैं उन सवालों की क्वालिटी क्या है, सवालों में टॉपिक के अंदर का कौन सा सब टॉपिक पूछा जा रहा है। इफ आई लेट्स से फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट नंबर सिस्टम, सभी लोग बोलेंगे आपको कि नंबर सिस्टम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम हैज टू प्रिपेयर नंबर सिस्टम सो वेरी डीपली। आई एग्री, मैं बिल्कुल मानता हूँ ऐसा ज़रूरी है, उसमें से सवाल आएंगे आपको। बट नंबर सिस्टम के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, उन सवालों में क्या कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट पे आपको पूछा जा रहा है, या कौन से कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछने के पॉसिबिलिटीज बनती है। आप बिलीव करो, एज यू स्टार्ट द टॉपिक नंबर सिस्टम, यू स्टार्टेड विथ द एनालिसिस ऑफ द नंबर्स, कि नंबर्स कैसे अलग अलग प्रकार में डिवाइड होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। और उस क्लासिफिकेशन में जब आप आगे बढ़ते हो तो उसमें एक आता है फैक्टर थ्योरी। फैक्टर का मतलब होता है डिवाइजर, जो डिवाइड करता है वो फैक्टर होता है। तो एक नंबर के कितने फैक्टर होंगे, ठीक है। फैक्टर थ्योरी के अंदर हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते हैं, उसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक नंबर के टोटल कितने फैक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई सेट 10, तो 10 के कितने फैक्टर होंगे, दैट मीन्स 10 को कितने ऐसे नंबर होंगे जो 10 को डिवाइड करेगा, इंक्लूडिंग 1 इन इटसेल्फ, ओके। तो हम इस फैक्टर थ्योरी को यदि पढ़ेंगे तो आई एम श्योर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको उसमें से बन जाएंगे। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन फॉर ऑल सच पीपल जो आज भी ये सोच रहे हैं कि सर थोड़ा सा ऐसा इनपुट मिल जाए जिसमें हम क्वांटिटेटिव तरीके से नहीं, हम क्वालिटेटिव तरीके से प्रिपेयर कर सके। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व 50 to 100 क्वेश्चंस ऑन ए डेली बेसिस, बट इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन you are able to analyze lot of things that are in the periphery of that question। और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, और उस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि कैट के क्वेश्चंस बनाने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सोचते हैं, दे नो इट वेरी वेल दैट दिस पेपर इज गोइंग टू बी टेकन बाय एन इंजीनियर, एट द सेम टाइम द पेपर इज गोइंग टू बी डन बाय somebody फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटीज और होम साइंस। तो आई हैव टू मेक ए प्रॉपर जस्टिस विद द पेपर। तो मैं ऐसा क्या बनाऊं जिससे दोनों का तालमेल बना रहे। बिलीव में, आप यदि पुराने पेपर्स को देखोगे, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू एवरी वन ऑफ यू हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स, आप में से सभी को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात मैं रखता हूँ, यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप प्लीज़ एक बार पुराने पेपर को देखिए, और पुराने पेपर को तालमेल बनाने में देखकर आपको तालमेल बनाने में एक सहूलियत होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से या पिछले कुछ सालों से 3 स्लॉट में पेपर हो रहे हैं। आप तीनों स्लॉट में पेपर के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए, टू ए सर्टेन एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, यू हैव टू हैव द चॉइस ऑफ क्वेश्चंस टू बी सिमिलर। यदि मैं किसी पर्टिकुलर स्लॉट में कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम से पूछ रहा हूँ, तो उसी से मिलता जुलता या उसी के इक्विवेलेंट डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन भी मैं सेकेंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट में पूछूंगा, अदरवाइज जस्टिस नहीं होगा। तो आप बिलीव करिए, लास्ट ईयर इनफैक्ट 2023 में फैक्टर थ्योरी के ऊपर आप यदि पेपर को देखोगे, तीनों स्लॉट में यदि आप पेपर को देखोगे, यू विल बी गेटिंग अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस ऑन फैक्टर थ्योरी। पहले स्लॉट में 1-2 सवाल है,
दूसरे स्लॉट में 3-4 सवाल है और तीसरे स्लॉट में भी 2 सवाल है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर थ्योरी से पूछा गया है, वो भी फैक्टर थ्योरी के ऊपर पूछा गया। फैक्टर थ्योरी कैट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, फैक्टर थ्योरी। तो यदि कोई व्यक्ति फैक्टर थ्योरी को अच्छे से समझ पाता है तो ही इज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू द फैक्टर थ्योरी। फैक्टर थ्योरी से मेरा मतलब है कि एक नंबर और उस नंबर के कितने फैक्टर्स है ये निकालना। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, या फैक्टर को हम दूसरे भाषा में बोलें तो डिवाइजर बोल सकते हैं, दूसरे टर्म में बोले तो डिवाइजर बोल सकते हैं। डिवाइड करने वाला, जो डिवाइड करता है उसको कहते हैं फैक्टर। सो फॉर ए नंबर, are you able to calculate the total number of factors or total number of divisors for that number? If you are able to calculate that, I believe कि थोड़ा सा रीजनिंग लगा के जो पेपर में सवाल आते हैं उसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट वी आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर सेशन फॉर ऑल सच पीपल who are very much involved in trying to analyze the qualitative understanding of the CAT paper based on the different CAT papers that were conducted since so many years. तो पिछले 5 सालों के 6 सालों के कैट के पेपर्स को मैं चाहूँगा आप एक बार एनालाइज करिए, आपको टॉपिक पता चलेगा उसमें कि कौन से टॉपिक्स पर सवाल आ रहे हैं। आपको मैं सच बताता हूँ, जब आप पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लेंगे ना, तभी आपको ये पता चलेगा कि कैट के पेपर के अंदर जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो टॉपिक्स क्यों पूछे गए हैं। आप यदि बिना पढ़े उस सवालों को देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इट इज़ ओनली व्हेन यू प्रिपेयर all inside out, then only you are able to figure out as to what is the idea in the mind of the examiner. वो कहाँ पर सवाल पूछना चाहता है, वो क्या जांचना चाहता है, what is in his mind to examine in the paper, that you will understand. तो उसके बेसिस पर मैं ये बात कह रहा हूँ। आज हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरी के ऊपर। वेलकम टू दिस सेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग कैट। एक्सप्रेसिंग कैट मतलब हम केवल उसी बात को, उसी कॉन्सेप्ट को, उसी आइडिया को इस प्रेजेंटेशन में लाएंगे जिस आइडिया पर पूरा का पूरा कैट का पेपर बेस्ड होता है। इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल टू टीच एवरीथिंग एट द सेम टाइम और इन फ्यू डेज, बट इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल टू मेक यू अवेयर एज टू व्हाट एग्जैक्टली द पॉइंट, concept where the question has been asked in the previous year in number system. We'll start with the number system and we can have a multiple discussions, multiple kind of argument that we can trace while analyzing this fact that somebody who is preparing for this exam must not leave this chapter without understanding few topics, if not the whole topics. So we are going to take those topics on the board. ठीक है, so welcome to this session of expressing CAT. Somebody who is writing CAT 2024 and someone who has made his mind to go for CAT 2025. These sessions are important. In fact, these sessions are going to help them in their preparations. So therefore, I request to all such people, all such students who would like to go for CAT 24 and 25, please subscribe the channel and be with us for the program that we are going to commence with expressing CAT. वैसे तो बहुत सारे सवाल है जो मैं आपके साथ लेना चाहता हूँ, बट आई वुड लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन विच वॉज द क्वेश्चन ऑफ CAT 2023 पेपर। इसमें पूछा गया था कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 having exactly two distinct integers other than 1 and itself. The number of positive integers less than 50 having exactly two distinct integers other than 1 and itself. ये सवाल लास्ट ईयर पूछा गया था। टू डिस्टिंक्ट, ये इंटीजर्स नहीं है, फैक्टर्स ही है। ओके, फैक्टर्स। The number of positive integers less than 50 having exactly two distinct factors other than 1 and itself. चूंकि मैं फैक्टर थ्योरी पे बात कर रहा हूँ तो देखो फैक्टर्स पे पूछा है। पहले सबसे पहला काम करना है आपको, जब भी कोई सवाल आप पढ़ते हैं, सब फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि उसने क्या पूछा है। उसने पूछा है 50 से मेरे को छोटे नंबर चाहिए और 50 से वो नंबर छोटे वाले नंबर चाहिए जिनके एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है, अलग अलग फैक्टर्स है।
1 एंड द नंबर इटसेल्फ को छोड़ करके, मतलब यदि 50 से छोटे कोई नंबर है तो उसके 4 फैक्टर होंगे, हर एक नंबर के 2 फैक्टर जरूर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एक्सेप्ट 1। जैसे 2 को देखिए, 2 के 2 ही फैक्टर है, 1 एंड द नंबर 2। 3 के 2 ही फैक्टर है, 1 एंड द नंबर 3। लेकिन 4 के 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और खुद 4 भी फैक्टर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि 50 से छोटे ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके 4 फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ को छोड़कर, मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 4। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग यू टू फाइंड आउट द पॉजिटिव इंटीजर्स which are less than 50 having 4 integers as positive factors including 1 and the number itself। 50 से छोटे ऐसे कितने नंबर होंगे, ध्यान रखें, 50 से छोटे ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके 4 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, यही है। तो अब सोचिए कि फैक्टर्स निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है। फैक्टर्स निकालने का कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यदि आप किसी नंबर को, नाउ आई एम टेलिंग यू द एक्सप्लेनेशन, यदि आप किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते तो उसके पास जितने सारे प्राइम नंबर्स हैं वो आपस में इस प्रकार से निकल आएंगे। जैसे आपने यदि 6 को तोड़ा तो 6 के पास 2 into 3 आ जाएगा। 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर। आपने यदि 12 को तोड़ा तो आपके पास 12 के पास 2 into 2 into 3 आ जाएगा। 2 बार 2 और 1 बार 3, टोटल 2 बार 2 और 1 बार 3, 2 प्राइम नंबर आएंगे, एक 2 और एक 3। आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा ये बात। 12 इज नथिंग बट 2 6 are 12 and then 2 3s are 6 and then 3 1 is 3। तो 12 is equal to 2 into 3। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इन 5th स्टैंडर्ड। ये 5वीं का सवाल है बेसिकली। लेकिन उस 5वीं के सवाल के कॉन्सेप्ट को वो कितने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं पेपर में, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पेपर। जब हम 5th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो उस समय हमारी मेच्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो हम उस टॉपिक को वैसे ही पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, कई बार समझना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, और जितना समझते हैं समय के साथ हम भूल जाते हैं। बट चूंकि वो इतना टाइम बीत जाता है, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, दैट द सेम टॉपिक कम्स टू अस एंड वी मस्ट हैव फॉरगॉटन द टॉपिक बाय दैट टाइम। तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है। बट बिलीव मी, इफ यू आर रियली वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, टेक आउट योर 5th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। यदि आपको NCERT 5th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स बुक घर में रखिए तो आप उसमें देखिए, आपको पता लग जाएगा। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट्स ऑल, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। तो आपने देखा 12 के पास 2 प्राइम नंबर निकले, एक 2 और एक 3। देयर आर ओनली 2 प्राइम नंबर्स जिसको यूज करके आप 12 को बना सकते हो। याद रखिए, दुनिया में सारे नंबर प्राइम नंबर से ही बनते हैं। तो टॉक अबाउट ए नंबर, इट मस्ट हैव मेड अप ऑफ द प्राइम नंबर्स ओनली। फाउंडिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स ही होते हैं। तो 12 को बनाने के लिए मुझे 2 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। ये जो पावर आप देख रहे हैं ना, दे आर डिनोटिंग द फ्रीक्वेंसीज। तो मेरे को 2 चाहिए कितने बार, 2 बार, और मेरे को 3 चाहिए कितने बार, 1 बार। सो दिस वे आई एम एबल टू मेक 12। तो 12 को बनाने के लिए 2 प्राइम नंबर 2 और 3 चाहिए, जिसमें 2 मुझे 2 बार चाहिए, 3 मुझे 1 बार चाहिए। सो आई विल बी एबल टू कंस्टिट्यूट 12। ओके, अभी 12 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर्स है, दैट यू नीड टू नो। तो आप देखोगे कि 12 को डिवाइड करने वाले 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, उसके बाद 6 भी होता है और खुद 12 भी होता है। 12 को डिवाइड करने वाले टोटल 6 फैक्टर्स है, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और इस बात को डायरेक्टली आप यहां से स्टेट कर सकते हो इस प्रेजेंटेशन से। जो पावर्स है उन पावर्स को एक बढ़ा करके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट और यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे आपने 2 को बढ़ा दिया, 2 + 1 3, 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2, तो 3 into 2 is equal to 6। So therefore there are 6 factors। ये जो मैंने 2 + 1 किया ना 3, वो ये बता रहा है कि 2 to the power 2 के पास 3 फैक्टर्स है। 2 to the power 0 जिसको हम 1 बोलेंगे, 2 to the power 1 जिसको हम 2 बोलेंगे, और 2 to the power 2 जिसको हम 4 बोलेंगे। So therefore there are 3 factors।
सिमिलरली 3 टू द पावर 1 के पास 2 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर 2 फैक्टर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 फैक्टर। तो 12 के पास टोटल 6 फैक्टर्स है, दीज आर द फैक्टर्स। हम यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हाउ डू आई कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स? जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द पावर्स आफ्टर इंक्रीजिंग बाय 1 ऑफ द प्राइम नंबर। जो भी प्राइम नंबर्स आए फैक्टराइजेशन में, उनके पावर्स को एक बढ़ा करके आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर एबल टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये जो सवाल है, ये सवाल इस पर बेस्ड है कि किसी भी नंबर के पावर में, किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स आएंगे, उनके पावर्स में क्या नंबर है। जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास टोटल कितने फैक्टर्स आने चाहिए? 4 फैक्टर्स आने चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट और 1 और द नंबर इटसेल्फ इंक्लूड करेंगे 4। तो 4 फैक्टर आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? वो नंबर हो सकता है P1 टू द पावर, क्या हो सकता है? P1 टू द पावर 3, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे को 4 फैक्टर चाहिए। तो 4 फैक्टर होता है 4 और 2 इंटू 2, और यदि 2 इंटू 2 है तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, और यदि 4 है तो उसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। तो ये पावर हो जाएगा P1 का पावर ये 3, सो 3 प्लस 1 ही हो गया 4 फैक्टर। और यहाँ पर हो सकता है दूसरा फॉर्मेट हो सकता है उस नंबर का, P1 टू द पावर 1 इंटू P2 टू द पावर 1। ये P1 कौन है? प्राइम नंबर। ये P2 कौन है? प्राइम नंबर। लेकिन पावर कितना होगा? 1 1 होगा। क्यों? क्योंकि सर पावर को एक बढ़ाना पड़ता है। सो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 2 4, 4 फैक्टर आ गए। और यहाँ पर पावर 3 रखा तो 3 प्लस 1 4, 4 फैक्टर आ गए। तो अब इसके कितने फॉर्मेट बन सकते हैं जो कि 50 से छोटे हो? तो पहला बन सकता है 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। अगला नंबर हो सकता है 2 टू द पावर 3 के बाद हो सकता है 3 टू द पावर 3, 3 3 से 9, 9 3 से 27। 2 टू द पावर 3 में 8 हो गया। 8 के 4 फैक्टर है, 1 2 4 एंड 8, और आपने 1 एंड द नंबर इटसेल्फ छोड़ने के लिए बोला है। सो आई लीव 1 एंड 8, सो आई लेफ्ट विथ 2 एंड 4, सो दिस इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट। 3 टू द पावर 3 में 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27, so 1 3 9 and 27 are the factors. I have to leave 1 and 27, so I left with 3 and 9, so those are distinct factors. 5 to the power 3 करूंगा तो हो जाएगा 125 which is not less than 50, तो यहाँ से मैं छोड़ दूंगा, तो मुझे यहाँ पर 2 नंबर मिले। अब आते हैं इस फॉर्मेट के पास। इस फॉर्मेट में क्या होगा? ये होगा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, मतलब 2 3 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो 50 से छोटे है, और 6 के टोटल 4 फैक्टर है, 1 है 2 है 3 है 6 है। 1 और 6 छोड़ दूंगा, सो आई विल लेफ्ट विथ 2 एंड 3, सो माई आंसर इज 6। ये हो सकता है। अगला क्या हो सकता है? 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, देखो ये हो गया 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये दूसरा नंबर। 6 इज लेस देन 50, 10 इज ऑल्सो लेस देन 50, दोनों के 4 फैक्टर है इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ छोड़ेंगे तो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर आ जाएंगे, तो ये भी इंक्लूड हो गया। अब ये सीक्वेंस कहाँ तक जा सकता है? आप थोड़ा सोचिए, सिर्फ लिखते नहीं जाना है, आप इसको बढ़ाएंगे। यहाँ पर प्राइम नंबर यूज करना है आपको, 2 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर, ऐसे बढ़ाते जाइए, 7 2 14, ये भी पॉसिबल है। तो अब देखिए आपको 50 तक है, तो 2 से डिवाइड करूंगा, देखिए 2 इंटू 7 14, तो ये जो मल्टीपल है ये क्लोज टू 50 तक जाना चाहिए, तो 25 होता है ना 2 के मल्टीपल में, 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50। तो अगला प्राइम नंबर 25 तक जाएगा, टेकिंग ओनली प्राइम नंबर्स। तो कहां तक जाओगे? 2 टू द पावर 1 11 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 13 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 17 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 19 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 23 टू द पावर 1, दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा 22, 13 टू 26, 17 टू 34, 19 टू 38, दिस इज 46। आगे जाऊंगा नहीं क्योंकि अगला प्राइम नंबर है मेरा 29, 29 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 58 हो जाएगा, विच विल क्रॉस 50। ठीक है, तो ये हो गया 2 के साथ सारे के सारे नंबर्स। नाउ द सेम थिंग आई कैन डू विथ 3 एज वेल, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 15। अच्छा 3 से
50 को डिवाइड करूंगा तो 16 तक जा सकता हूँ, 17 तक नहीं जाऊंगा, 17 3 ज़र 51 हो जाएगा। तो 3 to the power 5, 3 to the power 1, 7 to the power 1, 3 to the power 1, 11 to the power 1 और 3 to the power 1, 13 to the power 1, बस इतना ही आएगा। 17 तक नहीं जा पाऊंगा क्योंकि 17 3 ज़र 51 हो जाएगा, ये हो गया 21, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 13 3 ज़र 39। अब 3 और 3 के साथ सारे पॉसिबिलिटीज हो गए। अब 5 के साथ देखता हूँ क्या पॉसिबिलिटीज बनता है। 5 के साथ पॉसिबिलिटीज बनाना है तो मेरे पास क्या बनेगा, 5 to the power 1 into 7 to the power 1, 7 5 is 35। उसके बाद 5 to the power 1, 11 to the power 1, which is not possible because 55 is greater than 50, यहीं रोकना पड़ेगा। अब 5 के बाद 7 वाला यूज करूंगा, 7 to the power 1 into 7 के बाद वाला 11 which is 77 which is greater than 50, तो मेरा ये भी काम खत्म हो गया। Now I do not have any possibility. These are the total number of numbers which are less than 50 and having exactly two distinct factors other than 1 and the number itself. तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27। अब सबको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So I have exactly 15 numbers, 15 positive numbers less than 50 and have exactly two distinct factors less than 1 and the number itself. अब देखो ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है ना, ये कैट सोचता है इसके बारे में, और इस एनालिसिस को सोचने के लिए आपको फैक्टर थ्योरी को पूरा आना चाहिए। इफ यू नो द फैक्टर थ्योरी कंप्लीटली यू आर एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो लुक एट दिस अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राई टू फिगर आउट कि वो जो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फैक्टर थ्योरी, क्या आप फैक्टर थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़े हो? फैक्टर थ्योरी इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ कैट पेपर सेटर्स। तो वो इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो प्लीज गो टू द लास्ट ईयर्स पेपर, आपको उसमें बहुत सारे इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके सवाल देखने को मिलेंगे। आई एम श्योर यू विल बी फाइंडिंग एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस इन 3 different papers that were used in 3 different slots of CAT 2023 paper। एक सवाल और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लुक एट दिस, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 natural numbers each having 15 factors। फिर से वही बात, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया वो भी फैक्टर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ये भी फैक्टर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ये पूछ रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 2 natural numbers। सबसे पहले ऐसे कौन से 2 नेचुरल नंबर होंगे जिनके दोनों के 15 फैक्टर्स होंगे इंक्लूडिंग 1 and the number itself। ये भी टीटा पे पूछा गया था। टाइप इन द आंसर, आपको आंसर टाइप करना होता है। ये वाला भी आपको टीटा पे पूछा गया था, जो पिछला वाला आपने सवाल किया ना, मतलब आप सॉल्व करेंगे उसके बाद वहां पर आंसर लिखने की जगह होगी, वहां पर आप लिखेंगे देयर आर 15 नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 50 having exactly 2 factors which are distinct other than 1 and the number itself। तो ये टीटा पे पूछा गया था, ये भी आपको टीटा पे पूछा जाएगा। देखिए टीटा पे जो सवाल होगा ना उसमें थोड़ी सी एनालिसिस होगी एंड द एनालिसिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल। सो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एंड इफ यू नो हाउ टू एनालाइज इट यू आर एबल टू सॉल्व इट। कॉन्सेप्ट पता होने पर एनालिसिस धीरे धीरे बन जाता है आफ्टर डूइंग सम प्रैक्टिस ऑन इट। चलिए इसको ढूंढते, फिर से सोचिए, मेरे को ढूंढना है, खोजी बनना है आपको, खोजना है आपको। क्या खोजना है? 2 ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 15 फैक्टर होते हैं। अब फिर से सोचिए, 15 फैक्टर्स। अब 15 फैक्टर्स होने के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी है P1 to the power 14 हो, तो 14 + 1 = 15 फैक्टर हो जाएगा। या कैसे हो सकता है? या 15 फैक्टर्स के लिए मैं लिखूंगा 3 × 5 फैक्टर्स, यही होता है, दोनों प्राइम नंबर है। आप देखिए, और कोई तरीका नहीं है टूटने का, 3 × 5 के अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब आपके पास होगा P1 to the power 2 × P2 to the power 4, यही पॉसिबिलिटी होगी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और ये दोनों नेचुरल नंबर आपको कैसे चाहिए? फर्स्ट 2। तो आप ढूंढते हैं कि पहले 2 कौन सा मिलेगा। पहला 2 निकालने के लिए इन सारे प्राइम नंबर्स को छोटा यूज करना है मुझको।
सबसे छोटा, छोटा मतलब सबसे छोटा, दिस इज अ प्राइम कॉन्सेप्ट। कई बार हम प्राइम कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते, बिलीव मी दिस इज द प्राइम कॉन्सेप्ट। सबसे छोटा, मुझे सबसे छोटा नंबर आपने पूछा है तो मैं P1 और P2 की वैल्यू को सबसे छोटा रखूंगा। तो ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है 2 to the power 14, 3 to the power 14, 5 to the power 14, और यदि दो सबसे छोटा आपने बोला तो शायद मैं ये लूंगा, ऐसा मैं सोचूंगा। और 2 to the power 14 क्या होता है? गिन के देखो 2 2 ज़र 4, 2 ज़र 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, या अभी तक 2 to the power 12 में 4096 चला गया। ओके 4096, 40 हो गया तो 4 2 8192, 13 पे 2 to the power 13 पे 8192। तो मैं कितना बड़ा हो गया अभी, तो मैं और भी दूसरे वाले देख लेता हूं। तो n की वैल्यू, वो जो नंबर होगा क्या होगा, या तो इस पैटर्न पे होगा या तो इस पैटर्न पे होगा। ये वाले नंबर काफी बड़े दिख रहे हैं मुझे। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन सकता है सबसे छोटा बनाऊंगा तो मैं 2 के पावर में 4 रख दूंगा, इंटू 3 के पावर में 2 रख दूंगा। ये हो सकता है एक नंबर। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 इंटू 9, यह है 16 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 144। 16 का टेबल 16, 9 6 ज़र 54, 144। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि सर 2 to the power 4 और ये 5 to the power 2 कर दीजिए। ये हो जाएगा 16 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 400। दूसरा नंबर, ये तो काफ़ी बड़े हो गए तो छोड़ दो उनको, आपको तो सबसे छोटे 2 नंबर चाहिए। तीसरा ये हो सकता है कि सर 2 to the power 2 कर लेते हैं और 3 to the power 4 कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लिया कि करके देख लेते हैं क्या नंबर आता है। तो 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4 और 3 to the power 4 इज इक्वल टू 3 3 ज़र 9, 9 9 ज़र 81। सो ये आ जाएगा 4 1 इज 4, 4 8 ज़र 32, 324। अब मुझे सबसे 2 छोटे नंबर लेना है, मतलब मुझे इसको और इसको लेना है, इसको अब नहीं लेना है, 400 बड़ा हो गया। तो मेरे नंबर कौन से? मेरे नंबर है 2 to the power 4 एंड 3 to the power 2 एंड 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 4, मतलब मेरे नंबर है 144 एंड 324। और उन्होंने पूछा इन दोनों का सम, सो द सम कम्स आउट टू बी इक्वल टू 468। दिस इज माय आंसर। इट वाज इन द थीटा। What I'm trying to tell you is that try to figure out what was the concept on the basis of which the question has been prepared. What is the foundation of that question? If I know that a factor theory is a concept that has been utilized by the expert a number of times in the paper, कई बार एक्सपर्ट ने उसको यूटिलाइज किया पेपर के अंदर, हर स्लॉट में सवाल डाले, एक दो सवाल, और ऐसे नहीं कि केवल कैट 2023 में डाले, हर साल डाले 22, 21, 20 एंड ऑल। तो मेरे लिए फैक्टर थ्योरी एक कोर कॉन्सेप्ट हो जाता है। हालांकि इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कई बार हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है क्या ध्यान देना, अरे आता ही है मेरे को, बट बिलीव मी उसको थोड़ा सा आपको एनालाइज करना है, ऐसे एनालाइज करना है कि उस पर बनने वाले किसी भी प्रकार के सवाल को आप पेपर के अंदर कर सको। तो आज एक्सप्रेसिंग कैट में आई एम गिविंग यू दिस आइडिया दैट फैक्टर थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फैक्टर थ्योरी की कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करते बने, ऐसा उसको प्रिपेयर करना है। सी यू टुमारो विथ समथिंग मोर ऑन दिस एज एक्सप्रेसिंग कैट। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।